Hello students, welcome to IURage. Today we are going to learn about the anatomy of uterus. So we'll learn this topic into three different parts. In first part, we'll see the features of uterus and cervix. And in the second part, we'll learn about the ligaments and the supports of the uterus. And in the third part, we'll see the blood supply, nerve supply, lymphatics along with the clinical anatomy of the uterus. So let's start with the first part, that is features of the uterus and the cervix. We'll start with the introduction. So uterus is a child-bearing organ in females that we all know. It is a hollow, thick-walled and muscular organ. Its synonyms is womb or hystera. That's why जब यूट्रस की रिमूवल यूटरस की सर्जरी होती है तो उसे हिस्टेक्टोमी कहा जाता है बिकॉज यूट्रस का जो सिनोनियम्स है वो है हिस्टेरा. सिचुएशन देखेंगे. So uterus is situated in the lesser pelvis between the urinary bladder and the rectum. So हम यहाँ पे देख सकते हैं this is the hip bone. Hip bone में ये जो pelvic brim present होता है, this is the pelvic brim. इस pelvic brim के नीचे जितने भी organ present होते हैं और इस pelvic brim के नीचे वाला जो एरिया है उसे pelvic area और lesser pelvis कहा जाता है और इनके नीचे जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें पेल्विक ऑर्गन भी कहा जाता है. सो यूरिनरी ब्लैडर ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है बिहाइंड दिस बिलो दिस पेल्विक ब्रिम इन लेसर पेल्विस बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस. एंटीरियरली जो प्रेजेंट होता है वो है यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के पीछे हमें मिलता है यूट्रस एंड यूट्रस के पीछे प्रेजेंट होता है रेक्टम. So uterus is present in this lesser pelvis behind the urinary bladder or in front of the rectum. Uterus का shape देखेंगे, so it is pyriform in shape, which means it is a pear shaped organ. Moving on, uterus measures about in adult non-pregnant uterus, the measurement is like 7.5 centimeter long, 5 centimeter in breadth, 2.5 centimeter thick, and it weighs between 30 to 40 grams. Communications, the uterus communicates above with the uterine tube or superiorly with the uterine tube, as we can see in this picture. This is the uterus and superiorly it is communicating with the uterine tube, or inferiorly uterus is connected or communicates with the vagina, as we can see in this picture. टू मेजर रीजन्स, मतलब यूटरस ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. उसमें से जो पहला पार्ट है वो है यूट्राइन बॉडी. सो दिस पोर्शन इज यूट्राइन बॉडी राइट फ्रॉम द फंडस, इंक्लूडिंग द फंडस. दिस इज द यूट्राइन बॉडी एंड यूट्राइन बॉडी के नीचे जो सिलेंड्रिकल शेप्ड एरिया रहता है, this area is known as cervix. So uterus is divided into two parts. The upper part is uterine body and the lower part which connects with or communicates with the vagina is called as cervix. Uterus के functions, it protects and provide nutrition to the fertilized ovum, and at the time of parturition, that means at the time of delivery of a fetus, contraction of muscle in its wall results in the expulsion of the fetus from the uterus. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी यूट्रस की जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके कारण जो फीटस है उसका एक्सपल्शन हो पाता है. नेक्स्ट विल सी द पोजीशन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के दो पोजीशंस है, एक आता है एंटी वर्जन और एक आता है एंटी फ्लेक्शन. सो हम वन बाय वन दोनों पोजीशन देखेंगे. फर्स्ट हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है दैट यूट्रस ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर टिल्ट करके प्रेजेंट होता है. सपोज दिस इज अवर यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज अवर यूट्रस. सो यूट्रस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेगा या फिर कवर करके या टिल्ट करके यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा. एंड इसी पोजिशन को एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन, ये दोनों पोजिशंस बोले जाते हैं. The long axis of the uterus forms an angle of about 90 degrees with the long axis of the vagina. So we can see here in this picture, this is the vagina and this is the uterus. This is the uterus. So uterus का जो long axis है,
यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस और वजाना का लॉन्ग एक्सिस ये दोनों मिला के एक एंगल फॉर्म करते हैं। वो एंगल होता है 90 डिग्री का, और इसी एंगल के वजह से यूट्रस की पोजीशन हो जाती है एंटी वर्जन। इसी पोजीशन को बोला जाता है एंटी वर्जन। यहाँ इस पोजीशन में द फॉरवर्ड टिल्टिंग ऑफ यूटरस रिलेटिव टू द वजाना, यूट्रस की फॉरवर्ड टिल्टिंग हो जाती है, एंड जो वजाना है ये बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वो स्ट्रेट प्रेजेंट होता है, बट यूट्रस ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कवर हो जाता है। The uterus is slightly flexed at the level of internal os of cervix and forms an angle of 125 degrees. ये हम इस पिक्चर में देखेंगे। So this is the internal os. This is the internal os of the cervix, और cervix के internal os की लेवल पे जो यूट्रस की बॉडी है और यूट्रस है ये फ्लेक्स्ड हो जाता है, स्लाइटली यूट्रस का फ्लेक्शन हो जाता है, which makes this position of the uterus, और इस एंगल पे इस पोजीशन पे एक एंगल फॉर्म होता है, वो एंगल बनता है 125 डिग्री का। सो ये वाला एंगल बना 125 डिग्री, और इस पोजीशन को कहा गया है एंटी फ्लेक्शन। दिस पोजीशन इज नोन एज एंटी फ्लेक्शन पोजीशन। सो वी हैव सीन एंटी वर्जन। एंटी वर्जन में हमें लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाना के साथ और लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का एंगल, और इस पोजीशन को बोला है एंटी वर्जन। एंड द सेकेंड पोजीशन इज एंटी फ्लेक्शन, जो कि यूट्रस के स्लाइटली फ्लेक्स्ड हो जाने के कारण एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस ऑफ द सर्विक्स यहाँ पे एंगल बनता है 125 डिग्री का, which makes the position of anti-flexion of uterus. Moving on, now we have seen uterus ये two parts में divide होता है। upper part जो होता है वो होता है uterine body, and lower part जो होता है वो cervix. So सबसे पहले हम देखेंगे uterine body. uterine body को corpus uteri भी कहा गया है। It extends from the fundus at its uppermost part to the cervix inferiorly. So ये जो फंडस से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं, दिस इज द यूट्राइन बॉडी। यूट्राइन बॉडी की अपर मार्जिन और अपर एक्सटेंड जो होती है वो होती है फंडस से, एंड बिलो इट एक्सटेंड्स at the cervix, internal os, opening of the cervix. Internal os is the opening of the cervix from the uterus. So ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को यूट्राइन बॉडी कहा जाता है। It is a pear shaped and forms the upper 2/3 of the uterus. Near its upper end, the body receives uterine tubes on both sides. So, uterine body के upper end में, ये जो uterine body है इसके upper end में we can see यहाँ पे uterine tubes की opening हमें देखने को मिलती है। Uterine tubes also known as fallopian tubes. So, fallopian tubes opens into the uterine body at its upper ends. Then we'll see fundus. It lies above the uterine tubes opening, as we can see here. यहाँ पे uterine tubes की opening है, और इसके ऊपर जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर जो मिल रहा है और डोम शेप स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है फंडस। इट इज कॉन्वेक्स लाइक अ डोम एंड इट इज कवर्ड विद अ पेरिटोनियम। जो फंडस है ये पूरी तरीके से पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। फंडस जो है ये पूरी तरीके से पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। The uterine body has two surfaces and two lateral borders. Uterine body के दो surface होते हैं, एक होता है anterior inferior and दूसरा होता है posterior superior surface, and दो lateral borders होती है। Now we'll see the surface and borders in details. So first we'll see two surfaces. So यूट्राइन बॉडी के दो सर्फेसेस, पहला होता है एंटेरो इंफीरियर सर्फेस, दूसरा होता है पोस्टेरो सुपीरियर सर्फेस। वी कैन सी हियर एंटेरो इंफीरियर सर्फेस इज फ्लैट एंड रिलेटेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो हमें पता है कि यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे प्रेजेंट है यूट्रस। यूट्रस ब्लैडर के ऊपर टिल्ट रहता है, इसके कारण जो यूट्रस का एंटीरियर सरफेस जो होता है
वो थोड़ा सा इंफीरियरली चला जाता है, जिस कारण से हम इस सरफेस को बोलेंगे एंटेरो इंफीरियर सरफेस। एंड इसी टिल्टिंग के कारण जो पोस्टेरियर सरफेस है वो सुपीरियरली आ जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पोस्टेरो सुपीरियर सरफेस. So anteroinferior surface is flat and related to the urinary bladder. It is covered with peritoneum. ये जो surface है एंटेरो इंफीरियर surface, ये पूरी तरीके से पेरिटोनियम से कवर्ड होता है एंड इट फॉर्म्स द पोस्टेरियर और सुपीरियर वॉल ऑफ द यूटेरोवेसिकल पाउच और वेसाइको यूटेराइन पाउच. सो हमें पता है यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती है एंड यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में ये जो स्पेस हमें दिख पा रही है, ये जो स्पेस है ये पूरी तरीके से पेरिटोनियम से कवर्ड होती है एंड इसी स्पेस में पेरिटोनियम के कारण जो पाउच फॉर्म होता है, इसी पाउच को बोला जाता है यूटेरोवेसिकल पाउच और वेसाइको यूटेराइन पाउच, because it is present in between the urinary bladder and uterus. Then we'll see the posterior superior surface. Posterior superior surface एक convex होता है and is related to the terminal ileum and to the sigmoid colon. As we can see, ये हमारा posterior superior surface है जो कि convex है and it is related with the terminal ileum, a part of a small intestine, and with the sigmoid colon of the large intestine. ये दोनों structures यूट्रस के पीछे प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज कनेक्टेड विद और रिलेटेड विद द पोस्टेरो सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूट्रस. इट इज ऑल्सो कवर्ड विद पेरिटोनियम. जैसे कि हमने एंटेरो इंफीरियर सर्फेस देखा, उसी तरीके से पोस्टेरो सुपीरियर सर्फेस में भी पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे भी रेक्टम और यूटेरस के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है और इस स्पेस में पेरिटोनियम फोल्ड प्रेजेंट होती है और इसी पेरिटोनियम फोल्ड को रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस ऐसा ये बोला जाता है. सो वी हैव सीन टू पाउचेस. पहला एंटेरो इंफीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज वेसाइको यूटेराइन पाउच, और दूसरा एक पाउच पोस्टेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ यूटेराइन बॉडी एंड रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है विच इज ऑल्सो अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. उसे बोला जाता है रेक्टो यूटेराइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस. सो ये दोनों पाउचेस किस चीज में हेल्प करते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं? सो एंटेरो इंफीरियर सरफेस पे अगर हम देखेंगे जो वेसाइको यूटेराइन पाउच है, इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूटेराइन बॉडी एंड इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के जो टिश्यूज है, जो यूट्रस को इंटरनल लाइनिंग देते हैं, वो टिश्यूज जब यूट्रस के बाहर ग्रो करने लग जाते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है एंडोमेट्रियोसिस. एंड इस कंडीशन को स्प्रेड करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है ये वेसाइको यूटेराइन पाउच. एंड व्हेन इट कम्स टू पाउच ऑफ डगलस और रेक्टो यूटेराइन पाउच, सो दिस pouch it prevents the friction between the uterus and the rectum. यूट्रस और रेक्टम के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इस चीज का ख्याल और इस चीज को प्रिवेंट ये पाउच ऑफ डगलस करता है एंड इट ऑल्सो हैज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. मूविंग ऑन, हमने जो अभी दोनों पाउचेस देखे, दैट इज वेसाइको यूटेराइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम इन डिटेल लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस के पार्ट में देखेंगे. नाउ विल सी द टू लैटरल बॉर्डर्स ऑफ द यूट्रस. Each border is rounded and convex. As we can see here, this is the first border and this is the second lateral border. It provides attachment to the broad ligament of the uterus. Broad ligament of the uterus ये एक fan shaped ligament होता है जो कि यूट्रस को इस तरीके से पूरा कवर करके प्रेजेंट होता है. These are the broad ligament of uterus जो कि lateral border से attached होता है. The uterine tubes
opens into the upper end of this border. So lateral border के upper end में we can see the uterine tubes. These are the uterine tubes which attached to the upper end of the lateral border, and the upper end of this border also gives attachment to the round ligament of uterus or the ligament of the ovary. सो ये जो व्यू हम देख रहे हैं, दिस इज द पोस्टेरियर व्यू. सो इसीलिए जो राउंड लिगामेंट ऑफ द यूटरस है, ये यूटराइन ट्यूब के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर और इंफीरियर साइड में, एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर. दिस इज द यूटराइन ट्यूब एंड round ligament of uterus is present antero-inferiorly to this tube, and the ligament of ovary is present postero-inferiorly to this uterine tube. As we can see here clearly, this is the round ligament of uterus and this is the ligament of ovary, and ये दोनों ligaments along with the broad ligament ये attached होते हैं uterus की uterine body की lateral border के साथ, and the uterine artery ascends along it between the two layers of the broad ligament. So जो broad ligament है ये uterus को दो layer में cover करके होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई यूटेंसिल है, उस यूटेंसिल के ऊपर हमने कोई कपड़ा ढक दिया, ये ब्रॉड लिगामेंट यूटेरस को उसी तरीके से ढक के प्रेजेंट होता है. इसकी दो लेयर्स होती है, एक लेयर आ जाती है एंटीरियरली, एक लेयर आ जाती है पोस्टेरियरली, और एंटीरियर और पोस्टेरियर साइड को कवर करके जो ब्रॉड लिगामेंट है ये लैटरल बॉर्डर का जो एरिया है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पे स्पेस छोड़ देती है, एंड इसी स्पेस से यूट्राइन आर्टरी ये असेंड करती हुई, इस तरीके से असेंड करती हुई ऊपर जाती है, यूट्रस को सप्लाई करती है, उसके साथ साथ जो अपर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें भी यूट्राइन आर्टरी ये सप्लाई करती है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है. सो वी हैव सीन टू लैटरल बॉर्डर्स, उसमें अटैचमेंट होता है ब्रॉड लिगामेंट का, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस का एंड लिगामेंट ऑफ ओवेरी का, एंड इट ऑल्सो हैज यूट्राइन आर्टरी which ascends along the lateral borders of the uterine body. Moving on, now we see the cervix. We have seen uterine body. यूट्राइन बॉडी के दो सर्फेसेस होते हैं, एंटेरो इंफीरियर एंड पोस्टेरो सुपीरियर. यूट्राइन बॉडी के दो लैटरल बॉर्डर्स होते हैं. वी हैव सीन टू पाउचेस, vesico-uterine pouch and pouch of Douglas. Now we'll learn about the cervix. Cervix is the lower and cylindrical part of the uterus. This part is the cervix. It is 2.5 centimeter long and its lower parts projects into the anterior wall of vagina, dividing it into supravaginal and vaginal part. So cervix का जो lower part होता है, so this lower part of the cervix is the vaginal part of the cervix, जो कि वजाना के अंदर प्रोजेक्ट कर जाता है, जिस कारण से cervix अगेन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक वजाइनल पार्ट और दूसरा सुप्रावजाइनल पार्ट, जो कि वजाइनल पार्ट के सुपीरियरली और ऊपर प्रेजेंट होता है. तो हम सबसे पहले देखेंगे सुप्रावजाइनल पार्ट. सो सुप्रावजाइनल पार्ट के हम रिलेशंस देखेंगे. सो एंटीरियरली सुप्रावजाइनल पार्ट ये रिलेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर से, as we can see here in this picture. This is urinary bladder, this is the supravaginal part. It is related anteriorly with the urinary bladder, it is related posteriorly with the recto-uterine pouch or pouch of Douglas, which we have seen earlier. On each side ureter and uterine artery is present. So supravaginal part of cervix के each side में यूरेटर और यूरिनरी आर्टरी, सॉरी यूटेराइन आर्टरी ये प्रेजेंट होती है. Then we see the vaginal part. Vaginal part projects into the vagina, as we can see here. ये है vaginal part. This is the vaginal part जो कि vagina में project कर जाता है, and the spaces between it and vaginal walls are called as vaginal fornices. So vaginal part of the cervix or vaginal wall, this is the vaginal wall, this is posterior wall and this is anterior wall.
सो वॉल ऑफ वजाइना और सर्विक्स के बीच में यहाँ पे स्पेसेस प्रेजेंट होती है. These spaces are called as fornices. ये हो जाएगा एंटीरियर फॉर्निक्स और ये हो जाएगा पोस्टीरियर फॉर्निक्स. So we have seen cervix divided into two parts, supravaginal parts and vaginal part. Vaginal part projects into the vagina, इसलिए उसे vaginal part बोला जाता है. And vaginal part में vaginal fornices ये present होती है. Now let's move for the cervical canal. सर्वाइकल कैनल इज द कैविटी ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स के अंदर की जो कैविटी है उसे ही सर्वाइकल कैनल बोला जाता है. इट इज फ्यूजिफॉर्म इन शेप, दैट मीन्स इट इज टैपर्ड एट बोथ एंड्स, और स्पिंडल शेप्ड होता है और दोनों एंड में ये टैपर्ड होता है. एंड इट कम्युनिकेट्स अबोव विद द यूटेराइन बॉडी कैविटी थ्रू इंटरनल ऑस. सो वी कैन सी हियर दिस इज यूटेराइन बॉडी और ये जो कैविटी हमें दिख रही है दिस इज द कैविटी ऑफ द यूटेराइन बॉडी. सो सर्विक्स की जो कैविटी और सर्वाइकल कैनल है ये यूटेराइन बॉडी की कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है बाय एन ओपनिंग कॉल्ड एज इंटरनल ऑस. इंटरनल ऑस इज प्रेजेंट हियर. दिस इज इंटरनल ऑस जो कि यूटेराइन बॉडी की कैविटी और सर्वाइकल कैनल को कनेक्ट करती है. एंड देन बिलो और इंफीरियर साइड में जो सर्वाइकल कैनल है इट कम्युनिकेट्स विद द वजाइना. This is vagina and it communicates with the vagina through the opening called as external os. यहाँ present होता है external os. Cervical canal has two walls, anterior and posterior wall. It has anterior wall और पीछे present होती है वो है posterior wall. These walls shows mucosal fold called as arbor vitae uteri. सो ये जो सर्वाइकल कैनल्स की वॉल होती है यहाँ पे म्यूकोजल फोल्ड प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है आर्बर वाइटी यूटरी. ये आर्बर वाइटी यूटेरी जो है ये लॉन्गिट्यूडनल रिजेस होती है ऑफ म्यूकोजल फोल्ड्स एंड इट फोल्ड्स इन बोथ द वॉल्स इंटरलॉक विथ ईच अदर एंड क्लोजेस द कैनल. सो ये जो फोल्ड्स होती है म्यूकोजल फोल्ड्स होती है ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल इन दोनों वॉल्स में प्रेजेंट होती है. एंड जब ये दोनों म्यूकोजल फोल्ड एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर जाती है तो सर्वाइकल कैनल ये क्लोज रहता है. सो वी हैव सीन सर्वाइकल कैनल कैविटी होती है सर्विक्स की. इट इज फ्यूजिफॉर्म इन शेप, communicates above with the uterine body through internal os and communicates below with the vaginal cavity through external os. यहाँ सर्वाइकल कैनल हैज टू वॉल्स, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल. इन वॉल्स में ईच वॉल में म्यूकोजल फोल्ड प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है आर्बर वाइटी यूटेरी. ये फोल्ड्स लॉन्गिट्यूडनल रीजस होती है एंड जब ये दोनों फोल्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर जाती है तब सर्वाइकल कैनल ये क्लोज हो जाता है. So that's all for today's lecture. In next part of this lecture, we'll see the ligaments and supports of the uterus. Until then, keep reading. Don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. I'll see you soon in the next video. Thank you.